Welcome to my class, student in English. It so happened we are doing a chapter, The Open Window, and this is session 3. In this story, what you have seen there is Mr. Frampton Nuttall who has visited to Mrs. Appleton's house. He was suffering from bad nerves, and for the cure he has gone to the country, and there his sister had given letter of introduction of all the people whom she knew, but Mr. Nuttall didn't know anyone. So, in Mrs. Appleton's house, niece of her has narrated the tragic event that had happened to Mrs. Appleton, how she has lost the dog, brothers and husband, how their bodies had yet not been recovered, and so the window is already open. Every day it is open till late evening, and she always thought that they would come back. So what happened when and the lady Mrs. Appleton also confirmed that the people whom she had lost 3 years ago would come and have tea, and they would meet Mr. Nuttall. So let's see if they really come or not. So Mr. Nuttall tried to change the topic and he made an endeavor, but he was partially successful. He tried to draw her attention towards his illness. He started saying, the doctors agree in ordering me complete rest. So what the doctor has said, doctor has told me to take complete rest and absence of mental excitement. I don't need any mental excitement because doctor has completely told me no to this, and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise. And I am not allowed to have anything that is violent physical exercise. No, if I will do all these things, so my condition will be worsened. Announced Frampton, who labored means who made effort, जिसने मेहनत की, under the tolerable widespread delusion. वो एक delusion है, एक myth है, एक लोगों में धारणा है जो लोग tolerably बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत patiently सुनते हैं कि टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्वेंटेंसेस, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनको आप कभी नहीं मिले हो और जिनसे आप कभी कभार मिलते हो, चांस एक्वेंटेंसेस, वो क्या करते हैं कि किसी की भी बीमारी या किसी के भी परेशानियों के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी सुनना पसंद करते हैं. तो दिस इज द डिल्यूजन दैट टोटल स्ट्रेंजर्स एंड चांस एक्वेंटेंसेस आर हंग्री फॉर, वो भूखे होते हैं, least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. उसके बारे में जानना, उसके क्योर के बारे में जानना, इन सब के लिए वो बहुत हंग्री रहते हैं. Now delusion, false impression of belief, infirmities, illness, especially for long periods or because of old age, ailments and infirmities relating to health, complaints of sickness and weaknesses. तो इस डिल्यूजन को ध्यान में रख के मिस्टर फ्रैम्पटन ने लेडी को अपने बारे में बताया. ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, लेकिन डाइट को लेकर मैं वो इतना उन्होंने नहीं मुझे सावधान किया. वॉट एवर आई वॉन्ट आई कैन हैव, ही कंटिन्यूड, उसने कंटिन्यू किया. नो सेड मिसेस एप्लेटन इन अ वॉइस विच ओनली रिप्लेस ए यॉन एट द लास्ट मोमेंट. ओ नहीं, तो डाइट के मैटर में एग्रीमेंट नहीं किया. नहीं, उन्होंने ऐसे वॉइस में कहा कि जैसे वो थोड़ी देर में यौन में बदल जाएगा. लोग जब बहुत उबासी लेते हैं, बहुत बोर होते हैं, तो जैसा टोन आता है उस टोन में उन्होंने कहा. तो वो लास्ट मोमेंट पे ये जो टोन है उबासी में बदल सकता था. Then she suddenly brightened into alert attention, और तुरंत उसके बाद वो अचानक से बहुत अटेंटिव हो गई और ब्राइटली वो चमकने लगी, उनका चेहरा चमक उठा. But not to what Frampton was saying. Frampton के कई बातों पर नहीं. Here they are at last. अरे देखो अब वो आ ही गए. She cried. उसने कहा just in time for tea. ठीक चाय के समय वो आ गए. And don't they look as if they were muddy up to the eyes? ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पूरे धूल मिट्टी में सने हुए हैं, muddy up to the eyes.
फ्रैम्पटन शिवर्ड स्लाइटली, फ्रैम्पटन बिल्कुल ही डर के मारे कांप उठा, स्लाइटली वो कांपा, एंड टर्न टुवर्ड्स द नीस, और उसने नीस की तरफ देखा, विथ अ लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन, तो उसने नीस की तरफ देखा इस दृष्टि से कि वो कन्वे कर रहा है, वो बोल रहा है कि यस आई हैव सिंपैथी विथ योर आंट, तुमने जो कहा था आंट को ये भरोसा है कि मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे, एंड शी इज नाउ सेइंग द सेम थिंग, तो आई हैव सिंपैथी विथ योर आंट. The child was staring out through the open window with a dazed horror in her eyes. और वो जो बच्ची है वो भी ओपन विंडो के बाहर कैसे देख रही है, उसकी आंखों में बहुत ज्यादा डर था. In a chill shock of nameless fear, एक ऐसा फियर उसके अंदर आया, डर बैठा जो कि नेमलेस था, जिसको वो नाम नहीं दे सकते थे, और वो बिल्कुल शॉक से ठंडे हो गए थे, चिल बिल्कुल के बिल्कुल ठंडे हो गए थे. फ्रैम्पटन swung round in his seat, वो अपनी सीट में पीछे घूमे, एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन, उन्होंने सेम डायरेक्शन में देखा जहां की वो आंट देख रही थी. तो सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग एंड शोइंग सिंपैथी, अनकैनी कोइंसिडेंस, अननेचुरली अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेंजर. तो ये देखो, ये जो है हॉरिफाइड आईज से वो देख रही है, वो तीनों आ रहे हैं जो नीस है. In the deepening twilight, 3 figures were walking across the lawn. तो उन्होंने क्या देखा, जैसे पीछे घूमे कि अभी थोड़े थोड़े तारों भरी रात हो रही थी, तो 3 फिगर आ रहे थे, 3 परछाइयां आ रही थी अक्रॉस द लॉन टूवर्ड्स द विंडो, लॉन को क्रॉस करके आपके विंडो की तरफ. दे ऑल कैरीड गन्स अंडर देयर आर्म्स, और उन सभी के पास गन्स थे हाथ आर्म्स बाहों के नीचे. एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन विथ अ व्हाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर, और एक के पास एक और बर्डन था. एडिशनल बर्डन क्या था, व्हाइट कोट था जो कि उन्होंने अपने शोल्डर पे टांग रखा था. A tired brown spaniel kept close at their heels, और उन तीनों के साथ साथ कौन था, टायर्ड ब्राउन स्पेनियल था जो कि उनके पांव के पास चल रहा था. Noiselessly they neared the house, बिना किसी आवाज के वो घर के पास आए. And then a hoarse young voice chanted out of the dusk, और फिर उस डस्क में से एक आवाज आई जो hoarse voice, कर्कश आवाज में, नॉट सो स्वीट, hoarse voice में एक बच्चे के गाने की आवाज आई. I say Bertie, why do you bound? याद है, यही सेम गाना गाते गाते वो निकले थे, और ये गाना क्यों गाता था, अपनी बहन को टीज करने के लिए, वो ये यंगेस्ट ब्रदर गाता था. तो सेम गाना वो उसने मिस्टर नटल ने सुना. ये देखो, ये पीछे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ पर उनको धुंधली सी छवि दिख रही है. 3 लोग, यहाँ पर हाथों में गन है, स्पेनियल है, और ये देख रहा है, जो बच्ची है वो हॉरिफाइड नजर से देख रही है, लेकिन ये जो आंट है ये बहुत ही चीयरफुली वो देख रही है, क्योंकि वो खुश हैं कि वो लौट रहे हैं. Now third part, last part, what else can Frampton do but beat a hasty retreat? और वो क्या कर सकता था फ्रैम्पटन भागने के अलावा? Had he seen a ghost? क्या उसने भूत देख लिया था? The niece does have a knack for explaining an uncanny coincidence. ये जो uncanny strange coincidence हुआ कि वो आ रहे हैं और ये भाग रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए भी जो नीस है उसके पास एक स्टोरी थी. Now फ्रैम्पटन ग्रैब वाइली एट हिज स्टिक. फ्रैम्पटन ने जल्दी से अपने स्टिक को ग्रैब किया, अपने हैट को ग्रैब किया. फिर उसका जो भागना था उसको किस अच्छे तरीके से लिखा गया है. The hall door, the gravel drive and the front gate were dimly noted stages in his headlong state. वो जो सिर पे पांव रख के जो हेस्टी वो जो भागा, वो जो गया, तो उसको किसने किसने नोटेट किया, हर एक स्टेज को. पहले वो हॉल डोर तक गया, फिर ग्रेवल ड्राइव तक गया, जो पथरीला जो एक पगडंडी बनी रहती है, रास्ता बना रहता है. उसके बाद वो फ्रंट गेट की तरफ गया. A cyclist coming along the road had to run into the hedge, और एक साइकिलिस्ट उसी रास्ते से आ रहा था, उसको हेज की तरफ जाना पड़ा, झाड़ियों के पास जाना पड़ा.
to avoid imminent collision. नहीं तो ये एक collision, एक unnecessarily एक धक्का लग जाता, एक टक्कर हो जाती, इसको avoid करने के लिए Here we are, my dear, हम आ गए, said the bearer of the white मैग्नेटोस. तो जो रेनकोट, मैग्नेटोस इज अ रेनकोट, तो रेनकोट हैंडल करने वाला जिसके शोल्डर पे रेनकोट था, उसने कहा हेयर वी आर, हम यहाँ हैं, हम आ गए. कमिंग इन थ्रू द विंडो, विंडो की तरफ से आते हुए उन्होंने कहा हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप, वो कौन है जो बिजली की गति से अभी भागा जब हम आए. तो अब आपने यहाँ पर क्या पता चला कि ये कोई भूत नहीं है, ये सही में जिंदे लोग हैं. सुबह शूटिंग के लिए गए थे, शाम को वापस आ रहे हैं, और आंट एकदम सही है, उनको कोई मेंटल इलनेस नहीं है, उनको कोई ऐसा डिल्यूजन नहीं है कि मरे हुए लोग वापस आएंगे और इसलिए वो खिड़की नहीं खोल के रखती है. बल्कि ये जो नीस है जिसने ये स्टोरी बुनी थी, वीव की थी, और इसने मिस्टर फ्रैम्पटन को सुनाया था. Headlong in a rush with reckless haste, imminent, about to happen, Magnetos, a full-length waterproof coat, and bolt out, leap suddenly in hurry. A most extraordinary man of Mr. Nuttall, said Mrs. Sapleton. अब Mrs. Sapleton ने भी कभी Mr. Nuttall को नहीं देखा था, कभी उनको जाना नहीं था, क्योंकि उनकी सिस्टर यहाँ रहती थी. तो उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया कि एक बड़े ही अजीब से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन थे. He could only talk about his illnesses. वो सिर्फ अपनी बीमारियों के बारे में बात कर पा रहे थे. And dashed off without a word of goodbye. और कैसे वो भाग गए बिना गुड बाय के, और without any apology when you arrived. और आपके आते ही देखो बिना किसी apology के, बिना किसी गुड बाय के कैसे जल्दी में भाग खड़े हुए. One would think he had seen a ghost. ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई भूत देख लिया. I expect it was a Spaniard, said the niece calmly. उस समय नीस ने क्या बोला वेरी कामली, मुझे लगता है स्पेनियल को देखकर ऐसा हुआ. He told me he had a horror of dogs. उन्होंने मुझे कहा था उन्हें कुत्तों से डर लगता है. He was once hunted into a cemetery. वो एक बार सिमेट्री गए थे और वहां पर कहीं पर ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगास, गंगा नदी के किनारे एक सिमेट्री वो गए थे, और वहां पर ही वॉज हंटेड बाय. नाउ ये देखो, ये दोनों देख रहे हैं ये कैसे भाग रहे हैं, सिर पे पांव रख के, हैट है सब है, और ये कह रही है स्पेनियल के कारण जो है वो भाग खड़े हुए. सो ही वॉज हंटेड बाय पैक ऑफ डॉग्स. कुत्तों के झुंड ने एक बार उनपे हमला किया था. एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन अ न्यूली डग ग्रेव. और उनको एक तुरंत खुदे हुए ग्रेव में उनको रहना पड़ा था, रात गुजारनी पड़ी थी. विद द क्रिएचर्स, विद द डॉग्स, जो डॉग क्या कर रहे थे, गुर्रा रहे थे, स्नर्लिंग, ग्रीनिंग, अपने दांतों को दिखा रहे थे, एक आवाज निकाल रहे थे, एंड फोमिंग, और झाग निकल रही थी उनके मुंह से, अबव हिम. तो वो नीचे थे और तीनों कुत्ते उनके ऊपर ऐसे डरावने बनकर थे. इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व. और ऐसा रहेगा तो हम कुत्तों से डर लगना बहुत ही स्वाभाविक है. तो लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कहा गया, रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी. तो जो रोमांस है, जो फन लाना है, कैसे ओकेजनली और तुरंत कैसे आप अपने लाइफ में फन ला सकते हैं, ये जो है उसकी स्पेशलिटी थी. जो नीस है उसकी स्पेशलिटी थी. तो उसने पहले भी एक कहानी बुनी डराने के लिए, और यहाँ कहानी बुनी मिस्टर जो फ्रैम्पटन है उसके भागने के जो रीजन इसने बताया. ये यहाँ भी एक कहानी है. यहाँ स्पेनियल को उसने मोहरा बनाया, और पहले उसने अपने आंट के ब्रदर्स और अपने अंकल सबको मोहरा बनाया था. तो दिस स्टोरी इज रिटन बाय साकी, एंड दिस मिस्टीरियस एंड ह्यूमरस स्टोरी कम्स टू एन एंड हियर. Now snarling of an animal such as dog make an aggressive growl with bare teeth, greening to draw back the lips so as to show the teeth. कैसे हम लोग ग्रीन करते हैं दांत भींच के, as a snarly dog or a person in pain, foaming, foam or produce a mass of small bubbles forth. or romance at short notice, finding occasions for fun and enjoyment wherever possible. So here's Mr. Saki. He was born in 1870. He died in 1960. इन्होंने बहुत मजेदार ये स्टोरी लिखी है.
Now here comes to an end of the story. यहाँ आपने देखा कैसे दो स्टोरी के जरिए जो नीस है उसने कहानी को बहुत ही मजेदार बना दिया. उसकी इमेजिनेटिव पावर की तो दाद देनी पड़ेगी. So the next session I shall be here with the question answer of this particular chapter. Till then, enjoy the story, go through the word meaning, read the complex sentences, and please go to the app and see my types of sentences chapter where I have taught you how to make simple sentences, add it and complex and made it as a complex sentence. So please go through that session also, and examples are here, so you can learn in both the ways. Thank you.